تحقیق اور اپنا شودھ آپ کے آگے رکھتے ہیں، وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ خراب لگ رہے ہیں تو بچے کی بتائیے نا، اتنی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، زیادہ کرنے کا ضرورت نہیں ہاں تھوڑی دیر بولیں گے، بات ختم۔ بھائیان بیکن بھائیان بھائیان بیکن بھائیان বন্ধ কি আবার তার কাছে চলে গিয়ে এখানে লাগাই দাও। آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں، میری اور دھیان دیجئے۔ میں آج آپ سے انتم چھڑوں میں بات کر رہا ہوں۔ کل صبح میری واپسی ہو جائے گی۔ آج اس ایتہاسک اوسر پر، جبکہ ایک ایتہاسک پستک کا وموچن، اجرا، رونمائی آپ کے سامنے ہوئی۔ عام طور پر کتاب دو وجہ سے پڑھی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے۔ کبھی تو کتاب کا ٹائٹل، شیرشک، نام اور عنوان یہ اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ آدمی کتاب خریدے، پستک خریدے، اور کبھی رائٹر، لیکھک، آتھر یہ کارن بنتا ہے کسی کتاب کو خریدنے کا۔ اگر آدمی کو عنوان پسند بھی نہ ہو، شیرشک پسند نہ ہو، لیکھک پسند ہو تو کتاب خرید لیتا ہے۔ اور کبھی آدمی لیکھک کو جانتا نہیں، اس کے شیرشک کی وجہ سے پستک خرید۔ لیکن اس پستک کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا شیرشک، عنوان، ٹائٹل اہم ہے اور لیکھک بھی اہم ہے۔ اس کو دو کارن سے حاصل کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ تذکرۃ الکرام ہے، اللہ والوں کی داستان ہے، اللہ والوں کی بائیوگرافی ہے، اللہ والوں کی آلوچنا ہے، اللہ والوں کی جیونی ہے، جیون سنگرہ ہے اس میں۔ ایک کارن تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا لکھنے والا خود اپنے دور کا ولی ہے، اور بڑی مشہور شرعی کہاوت ہے۔ کہاوت بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کہاوت وہ ہوتی جو دنیا داری میں مشہور ہو جاتی ہے، اور ایک کہاوت وہ ہوتی جس پر شریعت کی چھاپ ہوتی ہے۔ جانتے ہیں وہ کہاوت کیا ہے؟ ولی را ولی بھی شناسن، ولی کو ولی پہچان۔ تو اگر ولی کا تذکرہ ولی لکھے تو اس سے اچھا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آلوچنا کون کر رہا ہے؟ ایک دنیا دار، دیندار کی آلوچنا کرے، بھلا کیا جانے گیا وہ؟ اسی لیے اس کتاب کی دوہری، دوگنی، مکرر، کبھی کبھی آپ تو حساب بناتے ہو، سائنس کا فارمولا بناتے ہو تو اس پر لکھ دیتے ہو اسکوائر، ہے نا؟ اس کی اہمیت جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ قرآن میں انبیاء کا تذکرہ، قرآن میں صلحاء کا تذکرہ آج بھی آپ اور ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اگر سورہ یوسف ہے تو اسی میں سورہ لقمان بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر نبی ہے تو لقمان علیہ السلام ولی ہے۔
اگر سیدنا موسیٰ کا تذکرہ ہے تو حضرت خضر کا بھی تذکرہ ہے، نبی کا بھی تذکرہ، ولی کا بھی تذکرہ. یعنی قرآن کی اتباع ہے یہ کہ نبی کا بھی تذکرہ ہو، ولی کا بھی تذکرہ ہو. احادیث میں بھی بنی اسرائیل کے اولیاء کا تذکرہ جا بجا سرکار دو عالم نبی رحمت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سرکار دو عالم کے بعد جب صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد اولیاء ائمہ کا دور آیا تو متعدد کتابیں لکھی گئی. سب سے پہلے تو سرکار دو عالم پر دو اہم کتاب سامنے آئی، ایک سیرت ابن ہشام اور دوسری کتاب طبقات ابن سعد. یہ دو بنیادی کتابیں ہیں جو سیرت کا ماخذ ہے. طبقات ابن سعد کو مغازی ابن اسحاق بھی کہتے ہیں. یہ دو کتابیں اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو جاننے کا بنیادی آدھاربھوت ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہیں سے بات نکل کے آتی. اور جب صحابہ کی تاریخ پڑھنے کو آپ کا جی چاہے تو آپ کو دو اہم تذکرہ ملے گا. ایک کا نام ہے اصابہ فی تمیز الصحابہ اور دوسری کتاب کا نام ہے اسد الغابہ. یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو صحابہ کی زندگی، پہچان اور معرفت کے لیے بے حد اہم ہے، جن کے بغیر صحابہ پر کام کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اس میں چونکہ صحابہ کا بھی تذکرہ ہے اور اولیاء کا بھی تذکرہ ہے. معلوم ہے آپ کو کتنے لوگوں کا تذکرہ؟ 90. 10 کم 100. آسان بات نہیں ہے. جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ 90 لوگوں کا تذکرہ لکھنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ زندگی بھر کی پونجی ہے نا. اور اس کا رائٹر ایسا بزرگ ہے جس کو اللہ نے ایک لمبی عمر بخشی ہے. 3 پیڑھی حضرت نے دیکھی ہے. ایک پیڑھی گزر چکی جس کو حضرت کے علاوہ کوئی دیکھنے والا اب بچا نہیں ہے. دوسری پیڑھی جس نے حضرت کو دیکھا ہے اور حضرت کو دیکھ کے وہ اب بوڑھا ہو گیا. اور تیسری پیڑھی وہ ہے جو جوانی کے عالم میں حضرت کو ایک دم بوڑھا دیکھا. پیڑھی کے اکیلے گواہ، اکیلے وٹنس امام اہل سنت ہے. یہ صرف 3 پیڑھی نہیں ہوئی. میں نے 3 پیڑھی کا تذکرہ اس لیے کیا آپ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پیڑھی دنیا سے چلی گئی سب نے تو کتاب نہیں لکھی، سب کی کتاب نہیں. بنگال کے بزرگوں پر 2 کتاب میری نظر سے گزری ہے، بلکہ 3. ایک تو شیر بنگالہ کی، دوسری بنگلہ دیش کے پیر و اولیاء، اور تیسری کتاب انگریزی میں ہسٹری آف صوفیزم ان بنگلہ دیش. لیکن ان تینوں کتابوں سے زیادہ اس میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایک پیڑھی جو دنیا سے چلی گئی، اس نے جو زبانی کہا، موخک روپ سے کہا، اس کا راوی امام اہل سنت ہے. سب کا سنا ہوا، سب سے جانا ہوا، سب سے سیکھا ہوا امام اہل سنت نے یہاں جمع کر دیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ، مہتوپورن، اتی آوشک ریفرنس ہے. یہ شودھ کے لیے ایک بنیادی گرنتھ ہے، ایک ایسا گرنتھ ہے جس سے آپ فائدہ اٹھائیں. ہاں، بات اور کہ اس کتاب کی حیثیت تصنیف کی کم ہے، ملفوظات کی زیادہ ہے. اس لیے کہ اس کتاب کے لکھنے اور چھپنے کا دور تب آیا جب حضرت خود اپنے ہاتھ سے لکھنے کی کیپیسٹی میں نہیں رہے. تو زیادہ تر چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حضرت نے لکھوائی ہیں، حضرت نے کہی ہیں اور لکھی گئی ہیں. یہ ملفوظات ہیں. غلطی نظر آئے آپ کو کل کے دن، بڑے بڑے لوگ اس پر ریسرچ کریں گے تو وہ غلطی حضرت کی نہیں ہوگی، وہ لکھنے والے کی غلطی ہے.
सबकी मजाल नहीं है कि वहां तक पहुंच के उसको वैसे ही लिख दे जैसा कि हजरत लिखवाना चाहते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बात, इसलिए मैंने ये कह दिया। मैंने इस पर एक नजर डाला तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये लिखवाई हुई किताब है। लिखी हुई किताब कहीं कहीं पर होगी, लेकिन ज्यादातर लिखवाई हुई है। इसीलिए आलोचना करते वक्त ईमानदारी के साथ बात कहनी होती है, और हम लोग इस काम को करते हैं दिन रात। अब आपको जरा तस्करा सूफिया पर कुछ बात बताएं, जान लीजिए। अब तो बताने वाला और इन सब टॉपिक पर जानने वाला भी बहुत कम है। जानते हैं आप औलिया का तस्करा शुरू कहां से हुआ, किसने लिखना शुरू किया? मैंने बैठे बैठे यहां गौर किया तो मुझे याद आया कि सबसे पहले सूफिया का तस्करा लिखने के लिए जब आगाज किया गया तो ये वो दौर था जब तबकात के नाम से तस्करे लिखे गए। तबकातुल हुफ्फाज, तबकातुल मुफस्सिरीन, तबकातुल सूफिया। फिर मसलक की बुनियाद पर लिखा गया तबकातुल शाफिइया, तबकातुल मालिकिया, तबकातुल हनफिया। ये वो दौर था जिसमें औलिया, सोलहा, आरिफीन, औलिया अल्लाह, उलमा के हालात जमा किए गए। फिर उसी में एक दौर आ गया अरबी के साथ फारसी का भी, लेकिन अरबी की एक किताब का नाम सुन लीजिए, उसका नाम है तबकात अस्सुल्लमी। अब्दुर्रहमान अस्सुल्लमी ने सूफिया का एक बहुत कीमती तस्करा लिखा तबकात के नाम से। उसके बाद फारसी में जितनी किताबें आई, चाहे वो कश्फुल महजूब हो, फरीदुद्दीन अत्तार की तस्करतुल औलिया हो, ये फारसी तस्करे हैं जिसमें औलिया का तस्करा आना शुरू हो गया। और जब तस्करतुल औलिया अत्तार की बुनियादी किताब है, कोई भी औलिया पर काम करना चाहेगा उसे अत्तार की तस्करतुल औलिया देखनी होगी। उसके बाद जिसका नाम आता है वो बहुत मशहूर किताब है मौलाना अब्दुर्रहमान जामी की नफहातुल उन्स। नफहातुल उन्स 500 के करीब सूफिया का तस्करा जमा किया हजरत। अब जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने काम करना शुरू किया तो पहला तस्करा इसका शजरा है। ये जो किताब लिखी गई है हिंदुस्तान ही में, ये काम अब बांग्लादेश में हुआ है, कल का हिंदुस्तान है ये। तो हिंदुस्तान की तारीख जानिएगा तब पता चलेगा कि ये किताब किन किताबों की कड़ी है, कहां से इसका शजरा मिलता। हिंदुस्तान में पहली किताब लिखी गई सैरुल औलिया, अमीर खुर्द किरमानी ने लिखी। कब लिखी? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के विसाल के बाद। वो हिंदुस्तान में यानी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस उप महाद्वीप में, बांग्लादेश मिलाकर पहली किताब है औलिया के तस्करे पर। वो भी शुरू हुई है सरकार दो आलम से, जैसे इसका पहला खंड शुरू हुआ है सरकार दो आलम से। इसी तरह सैरुल औलिया के बाद मनाकिबुल अस्फिया, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको एक किताब मिलेगी बड़ी नामवर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की अखबारुल अखियार। उसके बाद जो किताब लिखी गई उसका नाम है अखबारुल अस्फिया। इन सब पर मैं आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आपको सिर्फ नाम सुना रहा हूं। उसके बाद एक किताब आई महारिजुल वलायत अब्दुल्ला खेशगी की। उसके बाद एक किताब आई मिरातुल असरार अब्दुर्रहमान चिश्ती की। ये सब किताब सरकार दो आलम से शुरू हुई है और अपने दौर पर खत्म हुई है ना। अब महारिजुल वलायत के बाद एक किताब लिखी दारा शिकोर है, बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोर। उससे आपका रिश्ता भी है। आपको सुना दे, आप चाटगांव में बैठे हो, कभी कभी आप जाते होगे गरीबुल्ला शाह साहब के यहाँ। गरीबुल्ला शाह साहब जानते हो गरीबुल्लाह का दारा शिको से क्या रिश्ता? मुल्ला न होते अगर दारा शिको ना होता, है ना। दारा शिको
औरंगजेब का बड़ा भाई जब शाहजहां के आखिरी दौर में औरंगजेब और दारा शिकोह में जंग हुई, ताज के लिए, तख्त के लिए, गद्दी के लिए जंग हुई, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। आप सब जानते हैं, तारीख तो इतनी सुनी हो। दारा शिकोह जब हार गया, मैं जरा डाइवर्ट कर रहा हूं, बुजुर्गों के तस्करे से डाइवर्शन जरूर है, लेकिन तस्करा एक बुजुर्ग का है जिनका नाम हजरत गरीबुल्लाह है, जो चाटगांव के एक बड़े बुजुर्ग है ना। गरीबुल्लाह कैसे गरीबुल्लाह बने, इसका तस्करा हो जाए, ये भी तस्करा औलिया है। दारा शिकोह जब हार गया तो दारा शिकोह को कैद कर लिया गया। कैद कर लिया गया, कैद तो समझते हो गया, बंद कर दिया गया, कैदी बना दिया गया। तो कैदी बनाया गया तो औरंगजेब के हुक्म से सेना की एक टुकड़ी दारा शिकोह को साथ लिए रहती थी, इधर न भागे उधर न जाए, कहीं जाए नहीं, इसलिए कि ये तो शहजादा है, कहीं भाग जाएगा तो फिर फौज खड़ी कर लेगा और फिर जंग करनी पड़ेगी, तो इसको कैदी और बंदी बना के रखा जाए। तो जब कैदी बनाया गया तो उसको देखभाल करने के लिए कि कहीं भागे नहीं, कोई शैतानी न करे, कोई सियासत न करे, कोई षड्यंत्र न करे, कोई कॉन्स्पिरेसी न करे, इसके लिए एक टुकड़ी सेना की साथ लगाई गई। उसी टुकड़ी में एक ऑफिसर थे जिनका नाम था रूहुल्लाह। रूहुल्लाह, ये कौन थे रूहुल्लाह? ये कलीज खां के पोते थे। कलीज खां मुगलिया सल्तनत में एक बड़ा ओहदेदार हुआ, उसी के पोते थे रूहुल्लाह। रूहुल्लाह साहब दारा शिकोह को हर वक्त वाच करते थे, ऑफिसर थे। लेकिन दारा शिकोह का अजीब हाल हुआ, उसने शाही खाना खाने से, कैद खाने का शाही खाना जो जेल में मिलता है कैदी को, बंदी को, इनकार कर दिया। तो ऑफिसरों ने फैसला लिया कि अगर आप जेल का खाना नहीं खाते तो जो आपका मन करे सो खाइए। तो दारा शिकोह ने कहा मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। दारा शिकोह ने कहा मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। वो लकड़ी जमा करता, अपनी लकड़ी को जलाता, उस पर अपनी छोटी सी पतीली चढ़ाता और उसमें चावल डाल के खिचड़ी बनाता अपने हाथ से और वही खाता। कैदी के वक्त का तयन किया गया था, उठेगा कितने बड़े, नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ेगा, उसके बाद खिचड़ी पकाना है तो खिचड़ी पकाएगा, उसके बाद टहलने जाएगा तो कौन कौन ऑफिसर साथ होगा, नहाएगा कितने बजे, नहाएगा कि नहीं नहाएगा, ये सब ऑफिसर ध्यान देते थे, है ना। रूहुल्लाह उसमें बुनियादी ऑफिसर थे। एक दिन क्या हुआ कि खाना पकाने में लकड़ी सूखी हुई नहीं मिली। देखो बहुत बड़ा वाकया मैं सुना रहा हूं, गौर से सुनोगे तो जिंदगी पर उसका प्रभाव परिलक्षित होगा। सूखी लकड़ी नहीं मिली, कच्ची लकड़ी मिल गई। तो दारा शिकोह बादशाह होता, सबसे बड़ा बेटा शहजादा, फूंक फूंक के आंख से आंसू, लकड़ी जला रहा है और डेगची चढ़ा रहा है, खाना पकने में देर हो गई। ऑफिसर लोग आ गए, उस घड़ी की, जो भी घड़ी हो, ये घड़ी तो नहीं थी लेकिन घड़ी थी, धूप देख के वक्त निकालते थे और बड़ा पक्का निकालते थे। सवार आ गया कि टहलने का वक्त हो गया, तुमने खिचड़ी नहीं बनाई। 4 टके का सिपाही की औकात क्या है, बादशाह को डांट रहा है, शहजादे को डांट रहा है कि समय से बाहर हो गया और तुमने खिचड़ी नहीं पकाई। इतनी जोर से डांटा दारोगा ने, इंस्पेक्टर ने, पुलिस ने, सिपाही ने शहजादे को कि शहजादे को एक आंसू तो कच्ची लकड़ी से आ रहा था और दूसरा इसके डांटने से असर हुआ। रूहुल्लाह मौजूद थे, रूहुल्लाह पर अजब कैफियत हुई। कल बादशाह होने वाला था, आज मामूली सिपाही से डांट खा रहा। ये देख के रूहुल्लाह का दिल काट गया।
रूहुल्लाह ने कहा इसी का नाम दुनिया है? बादशाह होते होते रह गया, बंदी बना, और बंदी के बाद इज्जत भी खत्म हो गई। इसी के लिए हम सब कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो दिन था कि रूहुल्लाह ने नौकरी छोड़ दी, गायब हो गया रूहुल्लाह, जंगल जंगल मारा फिरा, है ना। कभी आगरा जाता, हिंदुस्तान का शहर आगरा, कभी कहीं खो जाता। एक दिन बिहार पहुंच गया, मेरे वतन बिहार। अब बिहार पहुंचा तो बिहार में पटना के सामने से गंगा नदी बहती है जो बंगाल तक आती है। गंगा नदी के उस पार वैशाली है, इधर पटना है उधर वैशाली है। वैशाली में एक खानकाह थी शुत्तारिया सिलसिले की, और उस वक्त उस खानकाह में बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, रुकनुद्दीन शत्तारी, रुकनुद्दीन शुत्तारी। उनकी खिदमत में रूहुल्लाह पहुंचा। फटे हाल, अजीब कैफियत में। ऑफिसर, पता नहीं कितनी फौज उसके अंडर में थी, कपड़ा फटा हुआ, बदहवास। रूहुल्लाह जब पहुंचा तो रुकनुद्दीन शत्तारी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि इसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन इसको राह किसी ने नहीं दिखाया है। जब किसी का दिल टूट जाए तो या तो वो घुट के मर जाएगा, और नहीं तो अल्लाह को करीब महसूस करके वली हो जाएगा। इसलिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था, रब्बे अरेनी, अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूं, मुझे अपना जलवा दिखा। रब्बे, मेरा रब, अरेनी, मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, लन तरानी, ए मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते। मूसा ने जब ये जवाब सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब सुना कि उस अल्लाह को जो मेरे ऊपर इतना मेहरबान है हम देख नहीं सकते, तो उनका दिल टूट गया, दिल टूट गया, दिल फट गया। तो पूछा, ए रब तुझे कहां तलाश करें? फरमाया, इन द मुनकसरतिल कुलूब, टूटे हुए दिलों के पास खोजो। जहां दिल टूटेगा वही खुदा मिलेगा। दिल टूटने वालों, दिल टूटता अगर है तो यकीन जानो अल्लाह वहीं पर होता है ना। रूहुल्लाह का दिल टूटा हुआ था, शेख ने कलेजे से सटा लिया। पीर जब किसी को कलेजे से सटाता है तो उसके दिल की मरम्मत कर देता है ना, उसके दिल से कुदूरत निकाल देता है, उसके दिल की सफाई कर देता है, और टूटे हुए दिल में अल्लाह के बास के लिए जगह साफ कर देता है। शेख का ये काम है, पीर का ये काम है। रूहुल्लाह को कलेजे से सटाया और कहा, रूहुल्लाह तुम्हारा आज से नाम गरीबुल्लाह हुआ। तुम्हारा आज से नाम क्या हुआ? गरीबुल्लाह। काहे वजह? नाम तो है ही रूहुल्लाह। वो एक जिंदगी थी कि बादशाह की नौकरी करते थे, और दूसरी जिंदगी है जिसमें सिर्फ अल्लाह की नौकरी करोगे। जब बादशाह की नौकरी करते थे तो रूहुल्लाह कहलाते थे, अब गरीबुल्लाह कहलाओगे, है ना। उस दिन से रूहुल्लाह का नाम गरीबुल्लाह हो गया। और गरीबुल्लाह शुत्तारिया सिलसिले, जैसे कादरिया है, चिश्तिया है, फिरदौसिया है, वैसे ही सूफिया का एक सिलसिला है शुत्तारिया। अपने पीर की जिंदगी में फिर गायब हो गए। कुछ दिन पीर के पास रहे, तालीम पाई, शुक्र का गलबा था, शुक्र, कलंदरी, मजजूबी का गलबा था, गायब हो गए। 6 महीने तक गायब रहे। 6 महीने के बाद एक शख्स खानकाह में आया, न ऊपर कपड़ा, न गंजी, न टोपी, नूरानी दाढ़ी बढ़ी हुई, लब बढ़े हुए, और सिर्फ पैजामा, वो भी आधा फटा हुआ। खानकाह में घुसा तो किसी ने कहा, कौन है ये? किसी ने गौर से देखा, अरे रूहुल्लाह है कि गरीबुल्लाह है। 6 महीने के बाद हजरत के पास आए और कहीं पर से निकाल के 3 सिक्का, उसको तस्करे में लिखा बहलूली रुपया सिक्का,
सिक्का 3 हजरत के पास रखा। हजरत ने कहा क्या है? कहा हुजूर खानकाह के खर्चे के लिए दिया था ना, तो पेड़ की जड़ में रख दिया था, भूल गए थे। आज जब दिल दिमाग दुरुस्त हुआ तो आ गए, वो 3 सिक्का मिल गया पेड़ की जड़ में, हुजूर की अमानत है, हाजिर है। अल्लाह है ना। पीर ने कहा ये तुम्हारा है, रख लो। फिर पीर कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि चाटगाम पहुंचा हुआ है गरीबुल्ला, खुद उसमें पीर कहते हैं। पीर को मालूम हुआ कि चाटगाम में है, और बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार, और चाटगाम की जनता उनको सर पर बिठाती है ना। अब एक वहां पर पता लिखा गया, अब आजकल क्या नहीं जानते, उसमें लिखा गया कि बहिश्ती नदी के किनारे, अब पता नहीं बहिश्ती नदी आजकल कोई नदी चाटगाम में है कि नहीं, बहिश्ती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर गरीबुल्ला का मस्कन है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये तीसरा खंड है। इसमें नाम ऐसा आपने सुना, अभी हबीबुल्लाह पढ़ रहे थे, हबीबुल्लाह शेर सुनाते हैं तो बहुत गौर से सुनता है, लेकिन जब नस्र और प्रोस पढ़ने लगते हैं है ना, तो ज्यादा आदमी ध्यान नहीं देता, इसलिए कोई समझता ही नहीं कि हबीबुल्लाह है। उसकी पहचान शेर के साथ हो। तो जितना नाम उन्होंने पढ़ा उससे आपको लग रहा होगा कि कुछ छूट रहा है। हजरत अली का नाम आया, हजरत उस्मान का नहीं आया, हजरत उमर का नहीं आया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नहीं आया, रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तो ये मत समझिएगा कि नहीं लिखा गया, अरे ये तीसरा खंड है। जो आपको नहीं सुनाई दिया वो पहले और दूसरे में है, वो पहले और दूसरे में है। इसलिए ये जो पहले दूसरे में छूटा हुआ है, या जिसका तस्करा उसमें नहीं हो सका, उसका इसमें है ना। इसलिए इस किताब को जरूर हासिल कीजिए। देखिए ये जमाना ऐसा है कि अगर आप अपने पूर्वजों को, ये कौन है आपके, सब पूर्वज है आपके, है ना। हमारे यहाँ पूर्वज सिर्फ वो नहीं होता जो बाप है और दादा है, पूर्वज तो मेरा कौन है, वली है, नबी है, वो है मेरे पूर्वज। इसलिए कि याद रखो, इस्लाम में शजरा बाप दादा से नहीं चलता, बाप दादा से नहीं चलता। अगर बाप दादा से चलता तो अबू लहब को भी इज्जत मिल जाती, तो बिलाल को नहीं मिलती। इस्लाम वो दीन है जिसमें बिलाल अहले बैत में शामिल होते हैं, और अबू लहब के लिए तब्बत यदा अबी लहब वो तब, यह है इस्लाम। इस्लाम इसका नाम है। इस्लाम कि मन सलका तरीकी फहुवा खलफी, जो मेरे रास्ते पर चलेगा वही मेरा बेटा है। इस्लाम का मेयार ये है, जो मेरे रास्ते पर चलेगा वही मेरा बेटा है, और जो मेरे रास्ते से डाइवर्ट करेगा, चिल्ला चिल्ला के कहे कि बेटा है, वो बेटा नहीं है ना। क्यों? कुरान कहता है नूह अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह की वही हुई कि आ रहा है तूफान, अजाब आ रहा है, नूह जल्दी से कश्ती में सवार हो जाओ, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बोला आओ आओ आओ, देखो तूफान आ रहा, कश्ती में सवार हो जाओ, नाव पर सवार हो जाओ, जल्दी सवार हो जाओ। हवा चलने लगी थी, पानी की फुहार गिरने लगी थी, और आप तो जानते हैं कि बारिश जब होती है तो उसके पहले मौसम बड़ा गर्म होता है, गर्मी होती है, उमस होती है। तो जब बारिश होने लगती है, हवा चलती है, तो आदमी कपड़ा खोलता, हाँ बहुत अच्छा लग रहा, मौसम अच्छा हो गया, सुहाना हो गया, बाहर का मौसम है ना, होता है ना। तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा गुनगुनाता हुआ, हाँ गुनगुना रहा, और बटन खोलता हुआ पहाड़ के तरफ जा रहा। तो बाप ने पुकारा, हे बेटा किधर जाते हो, कहां जाते हो, आओ नाव पर चढ़ो। तो बेटा ने कहा नाव पर चढ़ के क्या होगा, हम जा रहे हैं ठंडी हवा का स्वाद लेंगे, मजा लेंगे, अच्छा लग रहा है, मौसम वातावरण अच्छा हो गया।
बाप ने कहा अरे बेटा ये मौसम अच्छा नहीं हुआ है, ये अजाब इलाही है। कहा तुम बूढ़े हो के सिटिया गए हो, माज़अल्लाह, छोड़ो तुम बैठो, हम आते हैं घूम फिर के। चला गया पहाड़ पर, है ना। चाटगाम वालों के लिए पहाड़ नई चीज नहीं है। वो पहाड़ पर बैठ के दोनों पैर हिला रहा है और नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि पानी तेज हो रहा है, नाव पर चढ़ रहे हैं और पुकार रहे हैं बेटा चले आओ, बेटा चले आओ। जब नहीं आया और पानी तेज हुआ और बेटा घबराया अब क्या हो रहा है, तो नूह अलैहिस्सलाम को भी बेटे की मोहब्बत में हाथ उठाना पड़ा। परवरदिगारा अल्लाह ए रहमान ए रहीम, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब सुनो अल्लाह ताला का जवाब। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। क्या कहा अल्लाह ताला ने, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह जान लो ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, काहे नहीं बेटा, इसलिए कि इसका लक्षण तुमसे नहीं मिलता है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह पाक हम सबका लक्षण ऐसा कर दे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शुमार हो। फरिश्ते देख के कह दे मोहम्मदी लगता है, फरिश्ते देख के कह दे हाशमी दरबार का गुलाम लगता है। अल्लाह पाक ऐसा छल्ला कि फरिश्तों की नजर जब हम पर पड़े तो फरिश्ते कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला है। ये सब जिसने सिखाया वो 12 रबीउल अव्वल को आया, पीर के रोज आया, सुबह सादिक आया, ताहिर आया, मुतहर आया, मुनव्वर आया, मुकद्दस आया, मुअत्तर आया। यही सिखाने आया कि लक्षण मेरी तरह कर लो, लक्षण तुमको पार लगा देगा। मुंह से बोलने से नहीं होता, लक्षण चाहिए, लक्षण। अल्लाह हमें लक्षण दे दे। आइए खड़े होकर सलातो सलाम कहा गया।